Hello everyone, I am Yogesh Yadav, Assistant Professor in Botany, Department of Higher Education, Haryana. Presently, I am working as Assistant Professor in Government College, Kausli. So dear students, today we are discussing an important lecture on the topic that is chloroplast. Everyone is aware about this chloroplast because we know that all the system, or you can say that all the living world which is existing on this planet Earth, this is indirectly that is dependent on this particular organelle, that is chloroplast, because we know that the energy is available in the form of sun, and that energy is utilized for the formation of young ones or the living organism is only due to the presence of this organelle chloroplast. Fortunately, this chloroplast is present in the plant system, and these plant system got an opportunity to transform this energy into another form, and that is present in the living organism, and that energy is transferred from one organism to another organism, or we can say that we are transferring this energy from plant system to animal system. So due to the presence of this particular organelle chloroplast, this energy is given to the another organism, you can say that to the consumers. So plant, they act as producers in this ecosystem, and they are transferring our energy to the another organism or the another consumers. That may be of any level, that may be of primary consumer, secondary consumer, tertiary consumers, and all these things which are the part of the ecosystem food chain. The thing is that chloroplast, actually the chloroplast, this is a cell organelle which is generally present in the eukaryotic plant system, and this chloroplast, broadly you can say that this one is the you can say that this one is the part of the another cell organelle, we broadly say it as the plastids. So actual the cell organelle, that is the plastids. We can say that when we are trying to differentiate the animal cell or plant cells, we can say that the plastids, they are generally present in case of plant system. This plastids, the term plastid, that was first given by the scientist Simper. इन्होंने भाई इस टर्म को दिया, and they divided this plastid into three different form. One of the form beta, that is chromoplast, the second form chloroplast, and the third form, that is leucoplast. So they divide this particular organelle into three different parts: chromoplast, chloroplast, and leucoplast. This chloroplast, or you can say that this plastid term, if you are talking about the etymology, then this plastid word, that is taken from a term that is plastose. ये जो टर्म ली गई है किससे ली गई है? प्लास्टोज से ली गई है, एंड इस प्लास्टोज का जो मीनिंग जो होता है, द मीनिंग ऑफ प्लास्टोज, दैट इज द, यू कैन से दैट मोल्ड और फॉर्म्ड मोल्ड. मोल्ड आपको पता है, यू कैन से दैट दिस इज नथिंग बट बेटा दैट इज अ स्ट्रक्चर विच गिव शेप टू सम अनदर वन. तो एक मोल्ड होती है, एक फॉर्म्ड होती है, जिसके बेसिस के ऊपर हम इसे कहते हैं प्लास्टिड. एक सेल ऑर्गेनली होती है दैट एक्ट एज ए मोल्ड. किसका काम करती है भाई? वो मोल्ड का काम करती है. अब जो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं भाई, दीज क्रोमोप्लास्ट बेटा, दे आर, यू कैन से दैट दीज आर द प्रिमिटिव प्लास्टिड्स. दीज आर द प्रिमिटिव प्लास्टिड्स. प्लास्टिड कैसे होते हैं? प्रिमिटिव होते हैं. इट मीन्स they are not perfect chloroplast, but still they have the ability to perform the photosynthesis. क्या परफॉर्म करते हैं भैया? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, because due to the accumulation of photosynthetic pigment that is named as chlorophyll. तो chlorophyll के कारण, but still they are lacking the well defined structure which is generally seen in case of chloroplast. Okay, then the chloroplast, that is a well established cell organelle which is mainly responsible beta for the photosynthesis in plant system. And the third one, that is the leucoplast. These are the beta plastids which are generally provide color to the living system. It means they also have the ability to absorb, they also have the ability beta to accumulate
द वेरियस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड दीज पिगमेंट्स दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर कलर। एक पर्टिकुलर कलर क्या करते हैं भाई, ये प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो बट आवर मेन थिंग बेटा दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बेटा क्लोरोप्लास्ट, तो अगेन etymological there are two word, one is the beta chloros and the second one beta that is the plastos। टू टर्म्स हैं, इन दो टर्म से ये क्लोरोप्लास्ट बना है। अभी क्लोरोज अगेन दिस वर्ड बेटा दिस इज यूज फॉर द क्लोरोफिल, और दिस क्लोरोफिल के साथ हम जो टर्म जो यूज करते हैं दैट इज द ग्रीन, इट मीन्स अ ग्रीन स्ट्रक्चर। एंड प्लास्टोज अगेन द मोल्ड, अ मोल्ड which is consisting of beta which is green in color या which is providing green color, that particular cell organelle that is named as chloroplast। क्या कहलाती है भैया, क्लोरोप्लास्ट कहलाती है। अब जनरली जब हम क्लोरोप्लास्ट की बेटा बात करते हैं, दिस क्लोरोप्लास्ट that is variously beta present in different forms, that may be either in the form of beta size, शेप एंड इवन इन नंबर। ये वेरी करती है इन तीन चीजों के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द साइज, तो अगर हम साइज की बात करते हैं तो जनरली दिस क्लोरोप्लास्ट दैट इज 2 to 4 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। इसकी जो थिकनेस होती है वो 2 से 4 माइक्रोमीटर की वेरी करती है। एंड द कंप्लीट डायमीटर बेटा दैट इज इन द रेंज फ्रॉम 5 to 10 माइक्रोमीटर। 5 से 10 माइक्रोमीटर तक की इसकी क्या होती है भाई, डायमीटर होता है। ठीक है, अब साइज जब वेरी करता है तो वी कैन से दैट भाई किसी के अंदर क्या हो गया, 3 माइक्रोमीटर इसकी क्या होगी, थिकनेस होगी। किसी के अंदर अगर हम डायमीटर की बात करते हैं तो 8 माइक्रोमीटर का डायमीटर हो गया। दूसरे केस के अंदर क्या होगा, कोई दूसरा पर्टिकुलर दूसरा साइज क्या होगा अवेलेबल होगा। तो सिर्फ देयर इज ए रेंज, एक पर्टिकुलर रेंज है जिस रेंज के अंदर क्या होते हैं भाई, ये क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो इट मीन्स यू कैन से दैट द साइज दैट इज बेटा वेराइज विद ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करता है भाई, वेरी करता है। ठीक है, द सेकेंड बेटा थिंग इज दैट द शेप, यू नो दैट द शेप बेटा दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। जनरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द हायर सिस्टम, अगर हम हायर सिस्टम की बात करते हैं तो शेप जो आपको जो मिलती है दैट इज ऑफ बाइकॉन्वेक्स शेप मिलती है, या यू कैन से दैट प्लेनो कन्वेक्स शेप के अंदर क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लोअर फॉर्म्स, अगर हम लोअर फॉर्म्स की बात करेंगे तो दिस पर्टिकुलर बेटा क्लोरोप्लास्ट दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म। अलग अलग फॉर्म्स के अंदर क्या होते हैं भाई, ये प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर बेटा एग्जिस्टिंग इन द स्पाइरल फॉर्म। फॉर्म कैसी होती है, स्पाइरल। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म स्पाइरोगायरा, आपने सुना होगा स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट की शेप के अंदर मिलेंगे, स्पाइरल फॉर्म के अंदर मिलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जाइगनीमा के अंदर आपको क्या मिलेगा, स्टार शेप मिलेगी भी। शेप कैसी मिलेगी, स्टार शेप। किसके अंदर, जाइगनीमा के अंदर। इन द सेम वे क्लेमाइडोमोनास विच इज आल्सो प्रेजेंट इन योर सिलेबस। क्लाइडोमोनास की बात करोगे तो वहां पे किस तरह का क्लोरोप्लास्ट मिलता है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट मिलता है आप लोगों को। यू विल फाइंड द कप शेप क्लोरोप्लास्ट। इन द सेम वे इन केस ऑफ उडोगोनियम यू विल फाइंड रेटिकुलेट। शेप कैसी मिलती है, रेटिकुलेट मिलती है अभी। उडोगोनियम के केस में आपको शेप कैसी मिलेगी, रेटिकुलेट शेप मिलेगी। इन द सेम वे इन केस ऑफ एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया यू विल फाइंड डिस्कोइड टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कैसे मिलते हैं, डिस्कोइड मिलते हैं। तो यू कैन से दैट these lower forms beta they have various type of chloroplasts. There is a presence of various shapes of the chloroplast on the basis of which we generally beta identify the green algae. हम algae को क्या करते हैं भाई, identify करते हैं। Then the thing is that beta number, the another thing beta that is number। अब अगर हम नंबर की बात करते हैं तो the number जो होता है that also beta vary। In few cases the number beta that is existing 1। फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास के अंदर क्या होता है, केवल एक सिंपल क्लोरोप्लास्ट, सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है, कप शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है। इसी तरह से इफ यू आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ वॉल्वॉक्स, सो वॉल्वॉक्स के अंदर आपको क्या मिलती है, सिनोबियम मिलता है, कॉलोनियल फॉर्म मिलती है। एंड द ऑर्गेनिज्म ऑफ ईच
each and the organism of that colony, each organism of that colony that also have a single chloroplast. But if you are talking the other form, we are find the 25. The another one, it means the number beta that also varies from 25 to 100 chloroplast, which are present in the different organism. अलग अलग organism के अंदर क्या होते हैं भाई, present होते हैं. So there is a various diverse conditions are present in case of chloroplast. After that we are coming on the beta structure of chloroplast. So this, if you are talking about the beta structure of chloroplast, you can see that this chloroplast beta, that is a double membraned structure. ये भाई जो chloroplast है, एक डबल मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर मिलती है. इट मीन्स दिस वॉल ऑर्गेनली दैट इज एंक्लोज्ड बाय टू डिफरेंट मेम्ब्रेन्स. द फर्स्ट वन बेटा दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर वन दैट इज द इनर मेम्ब्रेन. एंड दीज मेम्ब्रेन दे आर सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन स्ट्रक्चर. अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो स्ट्रक्चर जो होती है इन मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, दे आर सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर होती है. इट मींस यू कैन से दैट दीज आर नथिंग बट दीज आर द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. एक जो मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की फॉर्म के अंदर क्या करती है, एग्जिस्ट करती है विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 40 to 60 एंगस्ट्रॉन. ठीक है, 40 से 60 एंगस्ट्रॉन का डायमीटर होता है. In between these two membrane there is a space and that space that is named as intermembranous space. इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस होता है. और ये जो इंटरमेम्ब्रेनस जो स्पेस होता है दैट इज बेटा एग्जिस्टिंग स्पेस ऑफ अबाउट 25 to 75 एंगस्ट्रॉन. इसके बीच में ये स्पेस को क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. आफ्टर दैट inner to this one, broadly if you are talking about, then this membrane bound body, double membrane bound body, that consisting of internally that consisting of two parts. दो पार्ट्स की बनी होती है भाई. इनमें से पहला जो पार्ट जो होता है बेटा, that one is named as matrix. The first part that is matrix, and this matrix this is also named as stroma. इसे हम स्ट्रोमा के नाम से भी जानते हैं. And the second part बेटा that is the thylakoids. और जो दूसरा पार्ट होता है वो किसका होता है, थाइलाकोइड्स का होता है. ठीक है. अब द वॉल वाटरी ट्रांसपेरेंट लिक्विड विच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस ऑर्गेनली, दिस इज नेम्ड एज बेटा मैट्रिक्स. ये क्या कहलाता है, मैट्रिक्स. अब खास बात ये होती है ये जो मैट्रिक्स जो होता है दैट इज बेटा रिच इन प्रोटीन्स. किसके अंदर रिच होता है, ये प्रोटीन्स के अंदर. इट मीन्स द मैट्रिक्स बेटा दैट इज प्रोटीनेशियस. तो वी कैन से दैट द ट्रांसपेरेंट प्रोटीनेशियस फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस क्लोरोप्लास्ट दैट इज नेम्ड एज मैट्रिक्स. क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है. ठीक है. इनसाइड दिस मैट्रिक्स देयर आर बेटा प्रेजेंट्स सर्टेन ऑर्गेनलीज. काफी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती है इन विच यू कैन से दैट देयर इज बेटा प्रेजेंट ऑस्मियोफिलिक ग्रैन्यूल्स. ऑस्मियोफिलिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. तो एक्चुअली दीज ऑस्मियोफिलिक ग्रैन्यूल्स आर नथिंग बट दीज आर द बेटा स्टार्च कंटेनिंग बॉडीज. क्या होती है भाई, ये स्टार्च कंटेनिंग बॉडीज होती है. द सेकेंड वन बेटा देयर आर प्रेजेंट राइबोसोम्स एंड दीज राइबोसोम्स बेटा ये जो सेल ऑर्गेनेली जो होती है दैट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सिस्टम. बट द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट दे आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर. इनका नेचर कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है. इट मीन्स द राइबोसोम्स बेटा विच आर प्रेजेंट दे आर ऑफ 70s टाइप. बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सिस्टम द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट 80s टाइप. बट इन दिस केस द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट दे आर ऑफ 70s टाइप. ठीक है. Along with this one beta there are present, you can say that there is present RNA, ribonucleic acid. Some amount of ribonucleic acid is present. There is some amount of DNA is also present. And then the most of the part, about 50 to 60% of the chloroplast membrane, that is beta consisting of thylakoids. वो किसका बना होता है, thylakoids का बना होता है. When we are seeing the structure of this particular organelle अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो वी फाउंड बेटा वेरियस लेमिलर स्ट्रक्चर्स. हमें बहुत सारी लेमिलर स्ट्रक्चर्स मिलती हैं. दीज लेमिलर स्ट्रक्चर्स दे आर नेम्ड एज थाइलाकोइड्स. क्या कहलाती हैं, ये थाइलाकोइड्स कहलाती हैं. तो यू कैन से दैट दीज थाइलाकोइड्स दे आर आल्सो द बेटा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. And the structure of these membrane bound organelle that is similar to the outer and the inner membrane because they are the extensions of these inner membrane. ये inner membranes की क्या होती है, extensions होती है. But now these things, these thylakoids,
दे आर अरेंज इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, दो फॉर्म्स के अंदर क्या होती है भाई ये अरेंज होती है। इन दिस डायग्राम यू कैन इजिली सी दैट these membranes beta they are present in two forms. At some of the position you are find that they are present in the form of group or in the form of stacks or in the form of heaps. Another one beta there are present single membranes are present which are interconnecting with various structures. एक दूसरे को क्या कर रही है भाई इंटरकनेक्ट कर रही है। तो in this case these thylakoids on the basis of their pattern how they are present in this chloroplast, they are beta existing in two different form. One of the form beta that is named as granule thylakoids and the another type of thylakoid they are named as stromal thylakoids. और दूसरे तरह के जो thylakoids से क्या कहलाते हैं stromal thylakoids कहलाते हैं। ठीक है, so the granule it means the thylakoids or the membranes which are present in the form of stacks or in the form of heaps, या stacks या heaps की form के अंदर जो present हैं these are named as granule thylakoids. क्या कहलाती हैं ग्रेनुल थाइलाकोइड्स कहलाती है। और ये जो ग्रेनुल थाइलाकोइड जो है दे आर बेटा प्रेजेंट इन 0.3 to 1.7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो लगभग इनका जो डायमीटर होता है वो इस रेंज के अंदर क्या करता है वेरी करता है। 0.3 से 1.7 माइक्रोमीटर की इनकी क्या होती है रेंज होती है जिसके अंदर क्या करते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और लगभग इस तरह के जो थाइलाकोइड्स आप देखोगे तो यू विल फाइंड दैट 40 to 60 thylakoids they are existing in a typical chloroplast. एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं भाई ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द अनदर पार्ट दैट द थाइलाकोइड्स और द मेम्ब्रेन्स विच आर प्रेजेंट सिंगली, सिंगल फॉर्म के अंदर क्या हो रही है भाई प्रेजेंट हो रही है दीज मेम्ब्रेन्स बेटा और दीज थाइलाकोइड दे आर नेम्ड एज स्ट्रोमल थाइलाकोइड्स। क्या कहलाती है स्ट्रोमल थाइलाकोइड। तो वी आर यूजिंग टू टर्म्स, दो टर्म यूज कर रहे हैं, एक हम यूज कर रहे हैं स्ट्रोमा और दूसरा हम यूज कर रहे हैं स्ट्रोमल थाइलाकोइड्स। सो दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। स्ट्रोमा दैट इज ए मीन द फ्लूइड material which is present inside the chloroplast, and the stromal thylakoids these are the singly present lamellar bodies which are present inside the chloroplast, they are named as stromal thylakoids. क्या कहलाती है भैया स्ट्रोमल थाइलाकोइड्स कहलाती है। ठीक है, नाउ इफ वी आर टॉकिंग द लार्जर व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैक और ए पर्टिकुलर ग्रेनम, अगर हम इस ग्रेनम की लार्जर इमेज के ओवरव्यू की अगर हम बात करते हैं तो यू विल फाइंड दैट देयर आर बेटा वेरियस मेम्ब्रेन्स एंड दीज मेम्ब्रेन्स वेरियस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स एंड दीज मेम्ब्रेन्स दे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर क्या होती है ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड आफ्टर द प्रेजेंटिंग दे आर फॉर्मिंग ए हीप, और एक हीप बनाती है। और ये हीप बनने के बाद जब हम इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो अ मॉडल वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट दैट इज द फ्रे एंड वेसलिंग इन 1953। आफ्टर दैट कैल्विन that in 1958 they also support this model and they told that this particular membrane that is consisting of beta 3 different layers, alternating layers क्या होती है भाई प्रेजेंट होती है। एक्चुअली लेयर्स तो क्या होती है दो ही होती हैं, लेकिन उसके साथ क्लोरोफिल भी क्या होता है प्रेजेंट होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अगर हम इस मॉडल्स की बात करें तो दो पर्टिकुलर लेयर इस थाइलाकोइड के अंदर प्रेजेंट होती है। एट द लोअर लेवल देयर इज प्रेजेंट अ प्रोटीन लेयर, एक जो लेयर होती है वो किसकी होती है प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, उस प्रोटीन के ऊपर देयर इज ए लिपिड लेयर। इन दिस डायग्राम दिस L that is representing lipid, this P that is representing protein, and the C this is the part where chlorophyll is present. So there is present protein lipid layer, after that again there is a protein and lipid layer. तो in this case अगर आप इस मॉडल की बात करो तो इन्होंने एक हाइपोथेटिकल डायग्राम प्रोवाइड किया। अकॉर्डिंग टू दिस वन देयर इज प्रेजेंट ए प्रोटीन लेयर, दिस पर्टिकुलर लेयर, ये जो लेयर है दिस वन इज प्रोटीन लेयर। जस्ट बिलो दिस वन देयर इज ए लिपिड लेयर, दिस पर्टिकुलर लेयर, ये क्या कहलाती है लिपिड लेयर कहलाती है। इनसाइड दिस वन दिस पर्टिकुलर रीजन, ये जो रीजन जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फॉस्फोलिपिड्स। किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है ये फॉस्फोलिपिड्स को रिप्रेजेंट करवा रहा है। दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग द फॉस्फोलिपिड्स। ओके, अलोंग विद दिस फॉस्फोलिपिड देयर इज प्रेजेंट क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट है क्लोरोफिल। तो ये जो पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है दिस वन इज क्लोरोफिल। अलोंग विद दिस वन बेटा देयर इज प्रेजेंट कैरोटिनोइड्स। तो इट मीन्स दिस लिपिड लेयर दैट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर कंटेनिंग पिगमेंट्स। किसको कंटेन करते हैं भाई
पिगमेंट्स को कंटेन करते हैं। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल होता है दैट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, अलोंग विद दिस क्लोरोफिल देयर इज बेटा प्रेजेंट कैरोटिनोइड्स। ठीक है, इन अदर केसेस यू विल फाइंड द सम अनदर पिगमेंट्स दे आर एम्बेडेड इन दिस लिपिड लेयर। वो किसके अंदर एम्बेडेड होते हैं? इस लिपिड लेयर के अंदर एम्बेडेड होते हैं। क्लियर? आफ्टर दैट in this case you will find some small rounded bodies which are generally existing with these granum. इन ग्रेमनर के साथ साथ आपको कुछ एक राउंडेड बॉडीज मिलेंगी एंड दीज राउंडेड बॉडी दे आर नेम्ड एज प्लास्टोग्लोबुलाई। क्या कहलाती है भाई? ये प्लास्टोग्लोबुलाई कहलाती है। ठीक है, तो एक्चुअली दीज आर द बेटा एक्सटेंशन। ये क्या होती है? एक्सटेंशन होती है किसकी? थाइलाकोइड्स की, विच आर एग्जिस्टिंग इन मोनोलेयरिक फॉर्म। किसके अंदर एग्जिस्ट करती है? मोनोलेयरिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन एंड फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। क्लियर? अब भाई कहने का मतलब ये हो गया कि जो थाइलाकोइड जो मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लास्टोग्लोबुलाई के अंदर केवल लेयर क्या होती है? एक ही लेयर होती है। अब बात ये आती है व्हाट दे डू, काम क्या करती है भैया? तो एक्चुअली दे आर आल्सो बेटा एक्यूमुलेटिंग सम अनदर पिगमेंट्स। दूसरे पिगमेंट्स को क्या करती है? एक्यूमुलेट करती है एक्सेप्ट क्लोरोफिल। ठीक है, और क्लोरोफिल को एक्यूमुलेट करती है आफ्टर देयर डिग्रेडेशन। किसके द्वारा? डिग्रेडेशन के बाद। सो देयर इज अनदर टर्म इज यूज्ड व्हेन वी आर स्टडीइंग द बेटा क्लोरोप्लास्ट, जेरेंटोप्लास्ट। वी आर यूजिंग अ टर्म दैट इज नेम्ड एज जेरेंटोप्लास्ट। So these are nothing but beta these are the degraded chloroplast, because everything has a life and after that life that have to degrade it into simpler forms. These simpler forms whether they are utilized for the synthesis of another pigment. So there is gerontoplast. So these gerontoplast fragments they are also accumulated in the plastoglobuli. किसके अंदर accumulate हो जाते हैं? ये plastoglobuli के अंदर accumulate हो जाते हैं। Along with this one, after that the thing is that this is a typical structure. Now the question arises how these chloroplast beta they are synthesized. ये भाई जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये कैसे सिंथेसाइज होते हैं? तो द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज these chloroplast they are beta synthesized by mean of a structure. ये एक स्ट्रक्चर से क्या होते हैं? सिंथेसाइज होते हैं एंड दीज स्ट्रक्चर्स दे आर नेम्ड एज प्रोप्लास्टिड्स। क्या कहलाती हैं? ये प्रोप्लास्टिड्स कहलाती है। तो यू कैन से दैट दिस इज द इनिशियल बॉडी which will be converted into chloroplast after a certain time, and that will be converted into chloroplast by the accumulation of two type of photoperiods. So generally these proplastid they are synthesized in dark. ये डार्क के अंदर सिंथेसाइज होते हैं एंड आफ्टर दैट दे विल बी कन्वर्टेड इनटू सम अनदर फॉर्म्स। दूसरी फॉर्म्स के अंदर क्या होते हैं भाई? ये कन्वर्ट होते हैं। तो इनिशियली दीज प्रोप्लास्टिड्स आर नथिंग बट दिस इज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर की क्या होती है? डेवलपमेंट होती है एंड दीज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स दे डेवलप बेटा वेसिकल्स। ये वेसिकल्स को क्या करवाती हैं? डेवलप करवाती हैं। इट मीन्स द इनर मेम्ब्रेन दैट विल शो इन्विजिनेशंस। ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये क्या शो करेगी? इन्विजिनेशंस शो करेगी। दीज इन्विजिनेशंस दे आर नेम्ड एज वेसिकल्स। क्या कहलाती हैं? वेसिकल्स। बोथ दीज थिंग्स दे आर हैपन इन द डार्क। आफ्टर द डार्क व्हेन इल्यूमिनेशन टेक्स प्लेस, जब इनको लाइट मिलती है, व्हेन वी आर इल्यूमिनेटिंग दीज पर्टिकुलर प्रोप्लास्टिड्स, जब हम इनको इल्यूमिनेट करवाते हैं देन डिफरेंशिएशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट विल टेक्स प्लेस। ये जो क्लोरोप्लास्ट है दे विल शो डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं भाई? डिफरेंशिएशन शो करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर बेटा इल्यूमिनेटिंग दिस स्ट्रक्चर, इल्यूमिनेटिंग दिस स्ट्रक्चर, अब अगर इस स्ट्रक्चर को हम इल्यूमिनेट करवाते हैं, इसके ऊपर हम लाइट को एक्सपोज करवाते हैं, तो इफ यू आर प्रोवाइडिंग दिस एक्सपोजर फॉर द 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के लिए हम एक्सपोज करवाते हैं, दीज वेसिकल्स दे विल डिटैच फ्रॉम द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन से क्या हो जाएंगी? ये डिटैच हो जाएंगी, वहां से ब्रेक हो जाएंगी, वहां से टूट जाएंगी एंड दे आर फॉर्मिंग अ इर्रेगुलर मास। और ये क्या बना लेते हैं?
इरेगुलर मास, यानी कि देयर विल बी अकुमुलेशन ऑफ दिस वेरियस थाइलाकोइड स्ट्रक्चर्स और दीज वेसिकल्स, इनका एक इरेगुलर मास बन जाती है, एंड दीज इरेगुलर मास ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, इन ट्यूब्यूल्स का एक इरेगुलर मास बन जाता है। दिस वन बेटा, दिस वन इज नेम्ड एज प्राइमरी थाइलाकोइड। क्या कहलाता है भाई? प्राइमरी थाइलाकोइड कहलाता है, ठीक है। आफ्टर दैट इफ द सेम थिंग बेटा, इफ यू आर प्रोवाइडिंग द इल्यूमिनेटिंग, ये तो 5 मिनट के लिए था, अगर इल्यूमिनेशन हम करवाते हैं 4 to 10 आवर्स, 4 घंटे से लेकर 10 घंटे के बीच में, हम जब इल्यूमिनेशन को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो वी विल फाइंडिंग द बेटा स्टैकिंग ऑफ दीज लेमिलर बॉडीज, इन लेमिलर बॉडीज की स्टैकिंग क्या की जाती है? ऑब्जर्व की जाती है। एंड फाइनली अबाउट 45 आवर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, जब 45 आवर्स का इल्यूमिनेशन हो जाता है तो दिस प्रोप्लास्टिड दैट इज कंप्लीटली डेवलप इनटू क्लोरोप्लास्ट। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर डेवलप हो जाता है, ठीक है। बट दे नेवर सिंथेसाइज डी नोवो, ठीक है। सो इसलिए इनकी जो सिंथेसिस होती है दैट इज फ्रॉम द प्रोप्लास्टिड्स। तो द सिंथेसिस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट दैट इज सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया दे आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन दिस पर्टिकुलर वे। इसी वे के अंदर क्या होती है? सिंथेसाइज होती है। द अनदर थिंग बेटा दैट इज that we have to study with the chloroplast. Inside the chloroplast beta there is a phenomenon that is named as autonomy. This phenomena is generally studied with the chloroplast. Autonomy. What do we know autonomy? Auto means self, nomos means governance. It means there is some autonomy with the chloroplast. क्लोरोप्लास्ट के लिए कुछ है, क्या होती है? ऑटोनॉमी होती है। इसकी जो गवर्नेंस होती है वो खुद की होती है, बट दैट इज नॉट कंप्लीट। दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ ऑटोनॉमी वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनेली दैट इज नेम्ड एज सेमी ऑटोनोमस। ये ऑर्गेनेली क्या कहलाती है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहलाती है। सेमी का मीन्स क्या होता है? हाफ, यानी कि सम ऑफ द गवर्नेंस विच इज गवर्नड बाय सेल्फ, अपना कुछ एक कंट्रोल वो अपने खुद के द्वारा होता है। This is due to beta presence of ribosomes. This is due to the presence of DNA, and the DNA which is also present in case of chloroplast, this is also similar to the prokaryotic system. ये भी prokaryotic system के जैसा होता है। It means circular DNA होगा। DNA कैसा होगा? Circular। तो some of the genes which are synthesized by this particular DNA, जो इस DNA के द्वारा क्या किए जाएंगे? सिंथेसाइज किए जाएंगे by using the ribosomal machinery. That's why the term beta autonomy that is associated with the chloroplast, ये chloroplast के साथ associated होती है, ठीक है। So this is about the things which are associated with the chloroplast. Now the turns comes to the functions. What are the functions which are performed by these chloroplast? ये chloroplast functions क्या करते हैं? ये हमने इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बात की थी भाई। क्लोरोप्लास्ट फंक्शंस, ठीक है। तो द मेन फंक्शन बेटा दैट इज द फोटोसिंथेसिस। मेन फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। द फंक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस दैट इज कैरिड आउट बाय द क्लोरोप्लास्ट, because there is a pigment and that pigment beta that is named as chlorophyll which is present inside the thylakoid of chloroplast। जो क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड के अंदर क्या होता है अभी? प्रेजेंट होता है। तो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस all are controlled by this particular cell organelle। इसी सेल ऑर्गेनली के लिए, इसी सेल ऑर्गेनली के द्वारा क्या की जाती है? कंट्रोल की जाती है, ठीक है। द सेकेंड वन बेटा दैट इज द दूसरा फंक्शन क्या करते हैं ये? दे बेटा कैरी आउट द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, तो सम ऑफ द प्रोटीन्स दैट इज आल्सो सिंथेसाइज्ड बिकॉज they have their own ribosomes, they have their own DNA। इनका अपना DNA भी होता है और अपना राइबोसोम्स भी होते हैं। सो दैट्स व्हाई बेटा दे आर सिंथेसाइजिंग द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। अलोंग विद दिस वन अदर फॉर्म ऑफ द प्लास्टिड्स,
क्लोरोप्लास्ट को तो हम नहीं कह सकते, बट अनदर फॉर्म ऑफ द बेटा प्लास्टिड्स, दे आल्सो बेटा हेल्प इन फोटो प्रोटेक्शन. If there is excessive light, beta exposed to this particular chloroplast, then some of the pigments they also helping in the photo protection. वो किस में हेल्प करते हैं? फोटो प्रोटेक्शन के अंदर काम करते हैं या लाइट क्वेंचिंग के अंदर काम करते हैं. लाइट को क्या करते हैं? क्वेंच करते हैं. ठीक है. सो दे विल बी डिटेल्ड स्टडीड व्हेन वी आर स्टडिंग द फोटोसिंथेसिस. जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो उस समय हम इनको क्या करेंगे? डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे. ठीक है. सो आई थिंक दिस वन इज अबाउट द वॉल क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन एंड द फंक्शंस. So I think that's all.